we are again focusing on the next topic in the electrochemistry, as we have already discussed about the introduction of electrochemistry. We have discussed about the galvanic cell, and I think many things we have discussed over here. But still, a small idea I am again giving you, because maybe possibly you must have forgotten the galvanic cell. It's just an outline I am giving you. If you remember, we always put anode over here. This was negative polarity, and over here we have cathode. It was a positive polarity. And for example, if I am taking that, we are just relating it that the electrons flow and the current flows, which we have to focus the movement of this thing, your cations and ions, and the electrons flows are always from your anode towards to cathode. The electrons are there, ठीक है. तो electrons moves in this manner, this way, from anode to cathode. Once again I am discussing about it, ठीक है. यहाँ से जाएगा. Over here we have seen oxidation was taking place. Over here we have seen the reduction was taking place. Fine. So now it's clear to you all. So, and they both were connected with these were placed in two different beakers, and they were connected to the salt bridge also. We have seen that salt bridge was there, ठीक है. इलेक्ट्रॉन का फ्लोर ऐसा था और करंट का फ्लोर कैथोड टू, दिस वाज द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड. दिस थिंग वी हैव सीन, ठीक है. एंड सपोज आई वाज टेकिंग वन एग्जांपल. जिंक था, जिंक जो चेंज हो रहा था क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, तो वो इट वाज गिविंग यू द आयन, ठीक है. एंड इट वाज व्हाट द एनोड कंडीशन. ये सॉलिड में होता था. ये आपका अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है, जो बेसिकली कौन सा था, एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक. ये आपका 1 मोलर सोल्यूशन होता था, या कभी का एक्वस इट्स वाज रिटन. इफ़ यू सी ओवर हियर वी वर यूजिंग कॉपर +2 आयंस, एंड इट वाज अगेन 1 मोलर, या हो सकता है एक्वस कंडीशन, आप कुछ भी हो. तो ये आपका कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन थी, और ये चेंज होता था आपका कॉपर, जो कि आपका इलेक्ट्रोड था, जो कि एक कैथोड की तरह कैथोड में वर्क कर रहा था. सो दिस वे वॉज योर केस वॉज देयर. तो ये कैथोड की तरह वर्क करता था, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह. ये एनोड आपका एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट है, एंड इट वॉज योर एनोड. सो आई थिंक दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू. ये ऑक्सीडेशन वर्क कर रहा है, ये रिडक्शन वर्क कर रहा है. इस तरह से योर थिंग्स वर हैपनिंग, एंड आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू. एक छोटी मेमोरी के लिए आप ध्यान रख लें. लेफ़्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है. यहाँ पे यू विल पुट एनोड, ओवर हियर यू विल पुट कैथोड. एनोड में इट विल कम योर ऑक्सीडेशन, ठीक है. इट विल बी योर रिडक्शन, then this will be your negative, and this will be positive. It's a small hand, and they were connected to the salt bridge. So there are different ways of representation to remember things. So this is the shortcut which you have to remember. Now we have to focus on the electrode potential. That I'm just not going beyond this thing, but you have to understand what is the electrode potential. Basically what is happening, electrode potential has been generated. देखिए ये आपका beaker था. In this you were placing your electrode, and it was connected to the battery. That was other thing. Now this electrode is made up of metal. Both side it was metal, and this was the electrolyte solution which we were using. It was a solution. So electrode potential is always arises, there is a electrode potential difference. इसका अपना एक electrode potential होगा, इसका अपना एक electrode potential, मतलब electrode potential अगर है तो इसका एक potential इसका अलग होगा, इसका अलग. तो इन दोनों का जो electrical potential का जो difference होगा, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, electrode potential. Means it will must be having a electrical potential, this thing potential. इसका अपना solution का अलग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, ठीक है. अब ये अपना अपना सेट, तो इन दोनों में जो डिफरेंस सेटअप होगा उसी चीज़ को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मींस द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड द सोल्यूशन, and its solution is known as your electrode potential. So there are two types. Nobody is going to ask you the definition or all that, but because we have the concept of it, so we have to remember that there are two electrode potential. एक आपका oxidation potential है,
और दूसरा आपका you have reduction potential. This thing you have to understand because later on things will be important for it. Now what is the electrode potential? Oxidation potential we'll see. So you have seen your anode part. आपने anode में देखा था, एनोड में व्हाट वाज हैपनिंग, योर ऑक्सीडेशन वाज हैपनिंग, ऑक्सीडेशन वाज टेकिंग प्लेस। एंड हमने एग्जांपल देखा था ना जिंक वाला, जो हम बार बार फोकस कर रहे हैं। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज़ करे और Zn+2 आयंस बना लिया। ये सॉलिड कंडीशन में था, ये 1 मोलर हमने लिया रखा था, ये एक्वस कंडीशन में था। ये हमें याद रखना है। दिस रिएक्शन यू विल राइट डाउन इन दिस मैनर, नॉट इन दैट मैनर। सो वो माइनस से इधर आएगा तो ये नेगेटिव आयन बना लेगा एंड दिस वे यू कैन फॉर्म योर एनोड पार्ट। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन यू विल सी। नाउ दिस व्हाट हैपन, द इलेक्ट्रोड, दिस इलेक्ट्रोड जो जिंक आपने यहाँ पे कंटेनर में जिंक इलेक्ट्रोड दिया रखा है, इसकी क्या टेंडेंसी है? इट टेंडेंसी इज़ टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट विल लूज़ द इलेक्ट्रॉन, ये लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन एंड इट गेट्स ऑक्सीडाइजेस, आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। सो ओवर हियर व्हाट इज़ द पोटेंशियल जनरेटेड, दैट इज़ योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ऐसे ही हम कैथोड को देखें। If you are taking the cathode part, cathode if you remember you are seeing reduction was taking place. So copper +2 ions थे, it was taking up 2 electrons and it gives you Cu. ठीक है, ये solid था, ये aqueous condition में था। Again I am telling you, instead of writing in this manner, you write the reaction. You take the electron this side, it will become negative minus charge. ठीक है, 2 electrons minus. Now what is the case that it is gaining electron. तो this particular, जैसे यहाँ पे भी आपने बीकर रखा था and you are placing your copper electrode and it was gaining electron ना, इस सोल्यूशन में जो था वो बेसिकली क्या हो रहा था, वो कॉपर वो लेके और आपका कॉपर यहाँ पे स्टिक हो जा रहा था आपका। ठीक है ना, तो बेसिकली इसके अंदर जो सोल्यूशंस में जो कॉपर आयंस थे वो इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद इट वाज चेंजिंग टू द इलेक्ट्रोड कॉपर एंड स्टक्स ओवर हियर. Now what is happening over here, that is this particular you can say ना, this tendency of this electron to gain the electrons. तो यहाँ gaining of electrons हो रहा है and then it ought to get, you can say, reduce. So that concept is known as your reduction potential. I think this is clear to you. What is your oxidation potential or reduction potential? So let's focus on the other parts. Now we have to see the this thing sign this in the half cells reactions also. देखो जो आपने अभी ये Zn में आपने ये रिएक्शन जो बनाई थी, ठीक, ये एक्वस कंडीशन में था, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही थी आपकी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हो रही थी और ऑक्सीडेशन आप चल रहे थे। तो आपने यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन हाफ सेल आप हमेशा लिखते थे, यू आर यूजिंग दैट थिंग कि इट इज़ ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, तो आपने जैसे ये रिएक्शन चलाई थी तो आपने ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखी थी। ठीक है, ऐसे ही आपने रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन आपने क्या लिखा था, Cu+2 आयंस +2 इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग गिव यू Cu। तो ये आपकी कंडीशन हो रही थी ऑफ रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन की। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर डे। नाउ बेसिकली व्हेन वी आर राइटिंग दिस थिंग, हम पोटेंशियल जब इनका लिखते हैं हाफ सेल रिएक्शंस का जब हम लिखते हैं तो वी आर ऑलवेज राइटिंग रिडक्शन हाफ सेल। हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल पोटेंशियल में नहीं चलाते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म पे चलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म पे ही आप अपना रिडक्शन हाफ सेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो इधर इज़ अ रिलेशनशिप फॉर एस्टैब्लिश एंड दैट इज़ ई ऑक्सीडेशन, दिस शोज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, माइनस साइन हो जाएगा। देखो क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन तो लिखना ही नहीं है, ये तो भाई ये है, तो अगर आप इसको हमेशा आप रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म पे लिखते हैं तो ये दोनों बेसिकली इक्वली होते हैं, बस ऑपोजिट साइन होते हैं। जैसे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, अगर आप इसको नेगेटिव रखेंगे तो जो आपका ये है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है आपका, ई, राइट, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई ऑक्सीडेशन। तो साइंस आर इम्पॉर्टेंट। नाउ देर आर सर्टन फैक्टर्स ऑल्सो विच आर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उन फैक्टर्स को भी हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वन इज़ नेचर ऑफ, आई एम राइटिंग डाउन फर्स्ट,
Now these are the factors: nature of the metal and its ions, concentration of ions in the solution, and temperature. So we have to keep it in mind. Now very first, the nature of the metal and its ion. What does it mean? More the active metal, the more the tendency of losing the electrons. ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना. एंड दे हैज़ द हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. यानी हमने क्या करा, जैसे सपोज करो Zn और कॉपर हमारे पास दो हैं एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो कॉपर जो है वो क्या है, ज़्यादा एक्टिव है ना, सॉरी जिंक जो है वो ज़्यादा एक्टिव है कॉपर से. तो जिंक इज़ मोर एक्टिव देन कॉपर. इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसकी ज़्यादा रहेगी और इसकी लेस रहेगी. ठीक है, तो लूज़ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर ओवर हियर, बट ओवर हियर इट विल बी लेस. तो ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होगा, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. किसका ज़्यादा होगा, इसका, जिंक का. अब कॉपर में देखें, कॉपर क्या है, एक्टिविटी सीरीज़ में लेस एक्टिव है. ठीक है, अब लेस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी भी इसकी कम हो जाएगी. ठीक है, और जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन. इधर क्या है, वीक और लोअर टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन्स. और इधर क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ये एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है, इसे याद कर लेना. अगर आपको कोई भी एक्टिविटी सीरीज़ के दो पर्टिकुलर एलिमेंट दे दिए जाएँ और उनके इलेक्ट्रोड्स दे दिए जाएँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम कैसे जस्टिफाई करेंगे किसका हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और किसका लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा. तो अब आपको समझ में आ गया, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर ये दोनों दिए रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्यों जिंक का हम लोग ने हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखा है. क्योंकि वो एक्टिविटी सीरीज़ में, एक तो वो एक्टिव मेटल है, कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है, एक्टिविटी सीरीज़ में भी उसकी पोजीशन कॉपर से ऊपर ही है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी भी उसकी ज़्यादा होगी और उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो भी हाई होगा. तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू. एंड वाइस वर्सा कॉपर का जस्ट ऑपोजिट है. Now the next point we consider about the concentration of ions in the solution. Now the point arises that concentration is of the ion in the solution increases, electrode potential decreases. ये बात ध्यान रखना. जितना ज़्यादा बल्कीनेस होगा आयंस का सोल्यूशन में, तो भाई वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो मूवमेंट कहाँ होंगे आयंस के, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा. क्लियर हो रही है मेरी बात, कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है आयंस के तो क्या होगा भाई, मूवमेंट कम होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर. Change in the temperature of the solution also changes the electrode potential. It's also when you are increasing the temperature, definitely movements of ions are more, so electrode potential is increasing. तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो आपको रिमेंबर करना है, पर ये वाला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स में ये इस पे रीजनिंग पूछी जाती है. जैसे मैंने अभी आपको जिंक और कॉपर दिया, कुछ भी आपको दे सकते, जिंक और सिल्वर दे सकते थे. यू नो नाउ कि वाई जिंक इज़ मोर एक्टिव एंड वाई सिल्वर इज़ लेस एक्टिव, और इसकी हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों ज़्यादा है और इसकी कम क्यों है. नाउ वी नो इट वेरी वेल. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट. नाउ वी विल फोकस ऑन EMF. नाउ नेक्स्ट इज़ EMF और द सेल पोटेंशियल. अब यहाँ पे रिलेट करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन आइदर नो और नेग्लिजिबल करंट इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द सर्किट. अब आपको ये याद रखना है कि अब आप अभी तक आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जहाँ पे आप एक इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में डिफरेंसेस देख के चल रहे थे, लेकिन अब आप सेल पोटेंशियल निकालेंगे जहाँ पे आपको दोनों ही इलेक्ट्रोड्स का रिक्वायरमेंट है एक सेल के अंदर. और ये ध्यान रखना है कि उस समय या तो बहुत करंट बहुत कम फ्लो कर रहा हो या फिर क्या है, बिल्कुल भी करंट उसमें फ्लो नहीं कर रहा हो. एंड यू हैव टू कीप इट फ्यू पॉइंट्स ओवर हियर दैट whatever the work you are calculating from the EMF is maximum work that is been obtained from the cell, and you also have to see that the maximum voltage obtained from the cell, plus it is responsible for the flow of steady current in the cell. That is also important कि मतलब EMF जो होता है वो इतना important होता है कि आपके पूरे सेल में प्रॉपर करंट फ्लो एक ही फ्लो में चलता रहा. ये नहीं कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, ये भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है EMF का. ठीक है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है. EMF को हम सेल पोटेंशियल भी कहते हैं. ठीक.
Now we will see there are different formulas for the calculation of EMF of a galvanic cell. तो ये मैंने डिफरेंट फॉर्मूलेज लगा रखे हैं, आप कोई भी फॉर्मूले जो है अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप वैसे तो याद रखना कि EMF को E0 सेल से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि पूरे सेल का हम ले रहे हैं, ठीक है EMF। तो उसमें हमने भाई ऑक्सीडेशन भी हमारा चल रहा है, ऑक्सीडेशन में पता है एनोड पे चल रहा है और हमें रिडक्शन मालूम है हमारा कैथोड पे चल रहा है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसको एनोड पे अगर आप रिडक्शन दिखा रहे हैं, जबकि एनोड पे तो रिडक्शन होता नहीं है, ऑक्सीडेशन होता है, तो जाहिर सी बात है ना, आप ऑब्जर्व चला रहे हैं तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब आपने जैसे ये लिया रखा है तो आपको ये मालूम है कि आप इधर कैथोड में तो 100% रिडक्शन होता है, तो राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं इसे। और एनोड पे आपका रिडक्शन नहीं होता लेकिन फिर भी आप दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने जब निकाला था, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में निकालते हैं, ठीक है। कभी भी हम लोग ये नहीं करते हैं कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में निकालें, लेकिन भाई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ मेनली आपको यही 3 फॉर्मूलेज जो रहेंगे वो एप्लीकेबल रहेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में आएंगे वो इन्हीं तीनों पे आएंगे। लेकिन एक लास्ट थर्ड मेथड भी होता है जो बच्चे कभी कभार ऑक्सीडेशन, कभी कभार क्वेश्चन पेपर में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म पे दे दिया जाता है, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, जबकि ये चांसेस बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर चांसेस इन्हीं के ही रहते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये भी फोकस करना है, बिकॉज वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो व्हाट थिंग्स वी हैव इंडिकेटेड दैट मेटल्स हैव द हायर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। यानी अगर कोई भी आप कुछ कंक्लूज, देखो इन फॉर्मूलों से या इन चीज़ों से हमें कुछ कंक्लूजन्स अपने निकालने, ड्रॉ करना पड़ेगा, उससे हमें बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे सपोज करो टीचर ने तुम्हें कोई हायर, जैसे किसी का दे दिया, तुम्हें इलेक्ट्रो पोटेंशियल तुम्हें दे दिया है और तुमसे पूछा जाए कि भाई किसको तुम एनोड बनाओगे, किसको, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये तुम्हें कुछ बात याद रखना है कि जिसका हायर इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है उसको हमेशा हम लोग वो बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं, ठीक है। और जिसका, ठीक है मैं लिख दे रही हूँ, हायर रिडक्शन अगर पोटेंशियल किसी का आ रहा है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ठीक, इसका मतलब उल्टा, जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो एनोड की तरह, यानी जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। ये तो एक पहली बात है, ठीक। सेकंड कंडीशन है भाई ऑक्सीडेशन के भी टर्म पे देख लें, अगर हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह। और जिसका लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो किसकी तरह एक्ट करे, कैथोड। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, आई एम अगेन टेलिंग यू, क्योंकि रीजनिंग में आएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको यही आंसर लिखना है। इट्स क्लियर टू यू। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। नाउ वी हैव रिटन फ्यू मोर पॉइंट्स। EMF यू वर कैलकुलेटिंग, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात है, देखो बेटा, जो सेकंड मेथड था जहाँ पे आपने ई सेल और E0 सेल, E0 रेड और कैथोडिक लिखा था, मैं दिखा दे रही हूँ, ये वाला मेथड कोशिश करना यही मेथड अप्लाई करो, क्योंकि ये मेथड सबसे ईजीएस्ट और कन्वीनियंट मेथड होता है और एरर की चांसेस कम होती है। सो प्लीज़ ऑलवेज फोकस ऑन दीज 2 मेथड्स फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ द EMF ऑफ योर सेल, ठीक है। बाकी में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो ऑलवेज अडेप्ट दीज 2 थिंग्स। नाउ पॉइंट अराइजेस, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़, देखो तुम्हारे जो हाफ सेल्स के हैं, जो आपने चाहे ऑक्सीडेशन हाफ सेल निकाला हो या रिडक्शन हाफ सेल निकाला हो, उनके पोटेंशियल्स जो निकलेंगे, जो भी आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहते हैं, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखना है कि जब आप EMF ऑफ द सेल निकालें, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव मतलब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ भी दिया आ रहा हो, किसी का नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, डजेंट मैटर, बट द EMF ऑफ द सेल शुड कम्स पॉजिटिव। द रीज़न इज़ दैट कि अगर EMF ऑफ द सेल पॉजिटिव निकलेगा, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं निकल सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव ही निकलना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव निकलने से ये फ़ायदा होता है कि रिएक्शन जो है आपकी स्पॉन्टेनियस चलती है। स्पॉन्टेनियस मतलब बिना रुके आराम से चलती रहेगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन अगर आपका वो नेगेटिव हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, रिएक्शन जो है रिवर्स चलने लग जाएगी। इसीलिए पॉजिटिव चलेगी तो पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस, और जिस वे में से चलना है उसी वे में चलना है, मतलब जो उसको प्रोडक्ट बनाना है वही। यानी अगर स्पॉन्टेनियस वो नहीं होगी तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और जो आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए था वो प्रोडक्ट ना मिलके आपको रिएक्टेंट्स मिलने लगेंगे। सो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड रिगार्डिंग योर EMF ऑफ द सेल्स। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। सो these are the points. Please remember again and again, because calculation of EMF of the galvanic cell is compulsory question that will come in your board exam. No one can
कैन चेंज दिस क्वेश्चन, इट विल कम। वन रीजनिंग विल कम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो जिंक और कॉपर वाला एग्जाम्पल देके एक आपको रीजनिंग बताई थी, वो भी 1 मार्क की रीजनिंग है, जो एक पेटेंट क्वेश्चन है जो आता ही आता है। So you cannot ignore this portion and you cannot ignore this chapter, because there are few points that nobody will ask you the definition now. There is cases where I'll inform you when you have to learn the definition, when not. But over here the numerical will come from the EMF of the cell, and definitely they will ask you the reasoning also from this portion. So hopefully you have understand it and go through this topic.